Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Anybody? We Exact have and Exact non-exact completed example. all solution. methods of solution. Okay, that means we have completed our method exact differential equation with the examples, and at last of the lecture we start our case number one, type number one, okay, of non-exact differential equation, and we done the example for that. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we continue with that, and it is about the नॉन एग्जैक्ट। ओके, सो हमने ये ऑलरेडी आगे स्टडी कर ही लिया है, डिस्कस कर ही लिया है, सो क्विकली गो थ्रू इट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जैक्ट कब होगा, जब डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा तब। सो उसमें टाइप नंबर वन मीन्स रूल नंबर वन क्या है कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ओके, एंड देन रूल नंबर टू इज द इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज of the form f1 xy into y dx plus f2 xy into x dy equal to 0, then the integrating factor will be 1 upon mx minus ny. Then case number 3 for non-exact is 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is a function of x only, means it is the only function of x. Then e raised to integration f of x dx is an integrating factor of m dx plus n dy is equal to 0. Then case number 4 of non-exact is if 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y is a function of y alone, say g of y, then e raised to integration g of y dy is the integrating factor of m dx plus n dy is equal to 0. Okay, so we already completed our case number वन with the example. Okay, हमने ये example भी complete कर दिया था, x square y minus 2x y square dx minus x cube minus 3x square y dy is equal to 0. So we go with the case number one. Before that I discuss the steps for the non-exact. Okay, so what are the steps for the non-exact? Anybody? डेल एम अपॉन डेल एन कंपेयर करेंगे, उसके बाद Yes, अगर इक्वल टू yes. नहीं होएगा तो नॉन एग्जैक्ट की 1 by 1 टेस्ट करेंगे. Yes, very good. So here you can see in your screen. First find out m and n. Then step number 2 is del m upon del y is equal to del n upon del x होता है कि नहीं. If it is equal to, then you can say that it is exact and directly go for the step number 3. But if it is not equal to del m upon del y not equal to del n upon del x, then it is the non-exact differential equation. And if you have the non-exact differential equation, then go for the step number 3. Step number 3 is identify the integrating factor. So integrating factor, first a 1 upon mx plus ny, second a 1 upon mx minus ny, third a 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is equal to f of x. Then integrating factor is equal to e raised to f of x dx, and fourth one is 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y is equal to g of y. Then the integrating factor will be e raised to g of y dy. So these all cases are comes under step number 3. Then if you identify the integrating factor, then case number step number 4 is multiplying given differential equation by integrating factor. And then step number 5 is you have the new differential equation n star xy dx plus n star xy dy is equal to 0. Okay, यहाँ पे equal to 0 आएगा. And after that the step number 6 is again verify the del n star upon del y is equal to del n star upon del x. If you done correctly, then you will get the exact differential equation. ये जो नया मिला ना वो exact differential equation हो जाएगा. But if you do some mistake, then you will not get this equal to sign. Okay, so if you have the equal, that means exact, then go for the step number 7, and it is the direct solution. What is the solution for non-exact differential equation? So integration y constant n star xy dx plus integration terms containing y only from n star xy dy is equal to c. Okay, so this is the about method. Okay, now we go for the next example, type number 2. Yes, we done this. Yes, look at here. Example number 2. Solve the differential equation 1 plus xy into y dx plus 1 minus xy into x dy is equal to 0. तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा मुझे केस करना है.
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, यू कैन सी हियर dx के आगे y होना चाहिए एंड dy के आगे x होना चाहिए। ओके, तब जाके हम सेकंड केस के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे फर्स्ट में dx के आगे y है एंड dy के आगे x है, एंड दूसरा कि ये होमोजीनियस नहीं है। अगर होमोजीनियस होता तो हम कौन से केस से कर देते? स्टूडेंट, अगर होमोजीनियस होता तो हम कौन से केस से हम कर देते इसको? केस 1। केस नंबर 1 से। ओके, बट यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है क्योंकि ईच टर्म हैज नो सेम पावर। ओके, यहाँ पे देखो 1 इंटू वाई करेंगे तो एक ही पावर है, बट x इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो टोटल पावर 3 हो जाएगा। तो देर आर डिफरेंट पावर्स विथ ईच टर्म, सो यू कैन नॉट से दैट इट इज होमोजीनियस। सो अगेन वी स्टार्ट विथ द m and n। सो मैंने पहले m and n फाइंड कर दिया। अब डेल एम अपॉन डेल वाई 1 प्लस 2xy हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 1 माइनस 2xy। तो बोथ आर नॉट सेम बिकॉज यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। सो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। और यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है कि होमोजीनियस मेथड से नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली वी गो फॉर द केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 में ये फॉर्म होना चाहिए कि dx के आगे y होना चाहिए एंड dy के आगे एक एक्स्ट्रा x कॉमन निकलना चाहिए, तब जाके हम केस नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज द केस नंबर 1? टाइप नंबर 2 mx माइनस एन वाई फाइंड करेंगे। सो m इंटू एक्स, तो यहाँ पे देखो x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0. So integrating factor will be 1 upon mx minus ny. So 1 upon 2x square y square. Okay, everybody? Understand up to here? Yes sir. Okay. अब दूसरी एक बात बताऊंगा कि अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लस करके नीचे डिनोमिनेटर में आता है तो डोंट गो विद दिस मेथड। ओके, डोंट गो विद दिस टाइप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो हमारा एम है कैंसिल आउट करने का, वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो केस हम नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? Yes sir. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एक ही बंदा क्यों बोल रहा है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. Yes sir. Thank you. Now we go for the next. Okay, next step is multiplying integrating factor to given differential equation. तो हमारा जो differential equation था उससे हम ये integrating factor को multiply करेंगे। So 1 upon 2x square y square into 1 plus xy into y dx plus 1 upon 2x square y square into 1 minus xy into x dy is equal to 0. So 1 upon 2x square y plus 1 upon 2x dx plus 1 upon 2x y square minus 1 upon 2y dy is equal to 0. So this is my new differential equation. So यहाँ पे देखो उन्होंने m1 n1 लिया है, हम क्या लेते हैं m स्टार n स्टार। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी लो लास्ट तक वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल m1 है तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 upon 2x square y plus 1 upon 2x and n1 will be 1 upon 2x square minus 1 upon 2y. So del m1 upon del y करेंगे तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर उसके लिए कांस्टेंट है, 1 अपॉन y का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। डेल n1 अपॉन डेल x करेंगे सो माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। सो ये बोथ आर सेम। ओके, सो डेल m1 अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, वी गेट इट। ओके, अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल ही जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है देन गो बैक केस नंबर या फिर जो भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पे वापस पहुँच जाओ और फिर से उसको सॉल्व करो। ओके, सो देन इक्वेशन 2 जो नया इक्वेशन बना है इट इज एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन तो हमको पता ही है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m1 dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स कंटेनिंग y ओनली फ्रॉम n1 xy dy इज इक्वल टू 0। जो मैंने बोला और ये दोनों सेम ही है या डिफरेंट है? मैंने क्या बोला? टर्म्स कंटेनिंग y ओनली फ्रॉम n, और यहाँ पे हम क्या लिखा है उन्होंने? टर्म्स ऑफ n1 डज नॉट कंटेनिंग x, मीन्स मैंने बोला कि y वाली अकेली लेना है और यहाँ पे लिखा है कि x नहीं लेना है। ओके, एवरीबॉडी सेम ही हुआ ना मीनिंग? Yes, sir. Yes sir. ओके, तो यहाँ पे dy इज इक्वल टू c। सो इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m1 जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया
प्लस इंटीग्रेशन -1/2y, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकेले y वाली टर्म है सिर्फ ये, सो -1/2y dy इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन तो एवरीबडी कैन डू इट। ओके, तो 1/2x² y में से 1/2y कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया। 1/x⁻² का क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, दैट मीन्स -1/x। तो पहले में वो -1/x मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/2 बाहर चला गया, 1/x का log x हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 बाहर चला गया, 1/y का log y इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट इन दिस एग्जांपल? No, sir. I want confirmation from all the student, please No, confirm. sir. No, sir. No, sir. Okay, thank you for your confirmation. Okay, now same तरीके से हम केस नंबर 3 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, केस नंबर 3 में क्या करना है, तो 1/n डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये थर्ड होगा कि नहीं, तो उसके लिए पहले दो जो रूल है वही वो दोनों अप्लाई नहीं कर सकते, देन गो फॉर द रूल नंबर 3 और टाइप नंबर 3। सो यू कैन सी हियर एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो। ओके, अब देखो, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² + y² + 3 dx - 2xy dy इज इक्वल टू 0। कैन वी अप्लाई द केस नंबर 1, यस और नो? टाइप नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट? कैन वी अप्लाई केस नंबर 1 ऑफ नॉन एग्जैक्ट? No, sir. नो, No, क्यों? sir. क्योंकि आप यहाँ पे x² Homogeneous एंड equation. यहाँ पे 3 जो है वो अकेला है, उसके पास पावर 0 है, इसलिए यहाँ पे वो जो होमोजीनियस का कंडीशन है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये होमोजीनियस से नहीं कर सकते। ओके, चलो फर्स्ट कैंसिल हो गया। नाउ थिंक अबाउट सेकंड नंबर केस। तो सेकंड केस कर सकते हैं टाइप नंबर 2, यस और नो? No, sir. नो, क्योंकि पहले में से हमारे पास y बाहर होना चाहिए, वी कैन नॉट डू इट। ओके, यहाँ पे y कॉमन नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 कैन नॉट बी अप्लाइड। ओके, सो वी गो फॉर द केस नंबर 3, टाइप नंबर 3। सो यहाँ पे देखो, given that x² + y² + 3 dx - 2xy dy is equal to 0, this is the given differential equation number 1। अब उसको कंपेयर करके हम m and n फाइंड करेंगे। सो m मेरा है x² + y² + 3, n मेरा है -2xy। So del m upon del y will be 2y and del n upon del x will be -2y. So del m upon del y not equal to del n upon del x. That means we have the non-exact differential equation. So non-exact होने से हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम सीधा we go for the case number 3. So case number 3 is 1/n del m upon del y minus del n upon del x is equal to -1/2xy 2y + 2y। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2y + 2y हो जाएगा। ओके, सो 4y और यहाँ से y कैंसिल, 2 कैंसिल, सो -2/x। और दूसरा, अगर यहाँ पे y प्रेजेंट होता है देन यू कैन नॉट अप्लाई द केस नंबर 3, यू हैव टू गो फॉर द केस नंबर 4। अंडरस्टैंड? Sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे मेरा हो जाएगा f(x). 1 मिनट है।
Okay. So minus 2 by x is equal to f of x. We say that it is f of x. So integrating factor will be e raised to f of x dx. So e raised to integration minus 2 by x dx. So minus 2 by x integration will be minus 2 into log x. So e raised to log x raised to minus 2. So ये हो जाएगा x raised to minus 2. ओके अब x रेज टू माइनस टू मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द इक्वेशन 1. सो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो x रेज टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स माइनस एक्स रेज टू माइनस टू 2xy dy इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करो कि इज इट ओके और नॉट. प्लीज वेरीफाई इट. Yes, sir. Okay. Okay, so we have the new m and n. So यहाँ पे m1 is equal to 1 plus x raised to minus 2 y square plus 3x raised to minus 2 and n1 is equal to minus 2x raised to minus 1 y. So del m1 upon del y is equal to 2x raised to minus 2 y and del n1 upon del x is equal to 2x raised to minus 2 into y. So both are same. So we can say that the new equation 2 is exact, and if you have the exact differential equation then we can go for the directly solution. So the solution of equation 2 is m1 by integration y constant m1 dx plus integration terms containing y only from n1 xy dy is equal to c. So यहाँ पे m1 तो as it is हो जाएगा, but if you observe n1, so here there is no any term for only y. Is it there? है कोई भी y वाली टर्म? No, sir. नहीं No, है. sir. तो we put here 0. Okay, so integration 0 dy is equal to c. तो सिर्फ आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है. तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x रेज टू माइनस 2 का हो जाएगा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1. सो माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा. यहाँ पे अगेन 3 एज इट इज, यहाँ पे x रेज टू माइनस 2 का फिर से वही का वही minus 1 upon x is equal to c, where c is an arbitrary constant. So is there any doubt, any question in type number 3? Anybody? No, sir. No, What about? sir. Okay, No, sir. No, sir. very good, thank you for your confirmation. Okay, now we go for the type number 4. What is our type number 4? 1 upon m del n upon del x minus del m upon del y is a function of y alone, say g of y. Then e raised to integration g of y dy is an integrating factor of m dx plus n dy is equal to 0. Case number 3 and case number 4 both are same, but only change is n is replaced by m. So 1 upon m ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, del n upon del x minus del m upon del y. और जो फंक्शन है इट इज टोटली फंक्शन ऑफ ओनली y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e रेज टू इंटीग्रेशन g ऑफ y dy हो जाएगा. ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now at example number 4. Okay, so you can identify here. So to verify, can we apply the case number 1, type number 1? No, sir. No, sir. No, due to 2y. Okay, 2y का पावर टोटल Yes. 1 ही है, बाकी सब में 4 है और 4x में भी 1 है. Okay, then next case number 2, type number 2. No. No, sir. No, No, sir. क्योंकि फर्स्ट में से y कॉमन निकल रहा है लेकिन सेकंड में से x नहीं निकल रहा है, तो वहीं पे हमको फेलियर मिल गया. अब देखो केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक शॉर्टकट है, मैं आपको बता रहा हूँ. आप इसको ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व कर दिया सबने? Yes, sir. ओके, अब इसमें देखो m छोटा है या n? N. m छोटा है, मीन्स यहाँ पे 3 M. टर्म्स है और यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो m छोटा हुआ. तो जब भी ऐसा होगा तब छोटे वाले से आपको स्टार्ट करना है, मीन्स ये m है छोटा, इसलिए 1 अपॉन m से स्टार्ट करना है. अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो इसके आगे वाले को भी मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ. देखो इसमें m एंड n में कौन छोटा है? N. 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 तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? देखो 1 अपॉन n से. क्लियर? Yes, sir. Okay, so you can also identify case number 2 and case number 3. So again वहीं से हमको स्टार्ट करना है. m and n हमने निकाल दिए, del m upon del y, del n upon del x, both are not equal. So you can say that it is the non-exact differential equation. So here we identify that we can apply the case number 4, type number 4. So
1 upon m del n upon del x minus del m upon del y is equal to 1 upon y raised to 4 plus 2y. ओके, तो आ गया यस y raised to 4 plus 2y और ब्रैकेट में ये दोनों का सब्सट्रैक्शन. ओके, y क्यूब माइनस 4 माइनस 4y क्यूब माइनस 2. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3y स्क्वायर सॉरी 3y क्यूब आएगा माइनस 3y क्यूब और यहाँ पे माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6. तो यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो y क्यूब प्लस 2 हो जाएगा. सेम तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में से भी आप कॉमन ले सकते हो. तो y क्यूब प्लस 2 विल बी कैंसल आउट. सो वी हैव माइनस 3 बाय y. सो इट इज only function of y, so g of y we can say that. So integrating factor will be e raised to integration g of y dy is equal to e raised to integration minus 3 by y dy. So e raised to minus 3 log y, e raised to log y raised to minus 3. ये तो आपको सबको पता है. Okay, so y raised to minus 3 is there. My next step is multiply this integrating factor with the given differential equation. ओके, सो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी कैन मल्टीप्लाई विथ y रेज़ टू माइनस 3. सो y प्लस 2y रेज़ टू माइनस 2 dx प्लस x प्लस y माइनस 4x y रेज़ टू माइनस 3 dy इज इक्वल टू 0. इसको वेरीफाई करो, अगर नहीं पता चलता है तो पूछो देन आई विल एक्सप्लेन यू. Yes, sir. Okay. Everybody understood? Yes, sir. Okay. Yes, तो sir. यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा. सो वी हैव न्यू एम एन एन. सो m1 इज इक्वल टू y प्लस 2y रेज़ टू माइनस 2 and n1 is equal to x plus y minus 4x y raised to minus 3. So del m1 upon del y will be 1 minus 4y raised to minus 3 and del n1 upon del x will be 1 minus 4y raised to minus 3. So del m1 upon del y is equal to del n1 upon del x. So you can say that it is exact, and if you have the exact differential equation then we can find the solution of the non-exact differential equation by integration y constant m1 dx plus integration terms containing y only from n1 xy dy is equal to c. So integration y constant यहाँ पे m1 मेरा है y plus 2y raised to minus 2 dx plus integration यहाँ पे only y वाली टर्म कौन सी है? y. Okay, so we can substitute here y only. dy is equal to c. So यहाँ पे ये तो totally constant है x के लिए. So y plus 2y raised to minus 2 outside. अब यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो we get x plus यहाँ पे y का हो जाएगा y square by 2 is equal to c, where c is an arbitrary constant. Okay, so is there any doubt, any question in case number 4? Anybody? Type number 4. No, sir. No, sir. Okay. What about others? Please confirm yourself. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, thank you for your confirmation. So this is about the non-exact differential equation. Okay, अब जो आपको सॉल्व करके दिया है वो आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट. ओके, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एग्जांपल्स. मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से एग्जांपल कर दिए. यस, वी डन एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 एंड 14. यस और नो? अभी किया ना ये लास्ट में? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे जो सॉल्व करके दिया है वो एक बार आप देख लो, और कहीं भी कोई भी स्टेप में नहीं पता चलता है तो पूछ लो, देख लो. चलो, ओके, कहीं पर भी डाउट है तो पूछो. पूरा सॉल्व करके यहाँ पे दिया ही है और ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी कर लिया मैथड, तो एक बार देख लो. देखो, फर्स्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली वी गो फॉर द केस नंबर 2. तो एम एन एन वाला तो आप इजीली कर पाएंगे, है ना. तो यहाँ पे ये फॉर्म के साथ ये रिलेट भी करता है कि dx के आगे y है एंड dy के आगे x है. सो सीधा 1 अपॉन mx माइनस ny करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 2x क्यूब y क्यूब. नाउ मल्टीप्लाई दिस integrating factor to the given differential equation, so we get the new equation star. Now we have the new m and n. so यहाँ पे ab लिखा हुआ है तो ab भी आप लिख सकते हो.
उससे आप देखेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता ही है। ओके, इसमें देखा आपने कि कोई भी एग्जांपल में कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द केस। ओके, कौन सा केस एप्लीकेबल है वो अगर आपने अच्छी तरीके से कर दिया देन इट इज ओके। ओके एवरीबडी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो देन लास्ट एग्जांपल यू कैन सी। देखो आप यहाँ पे मैंने बोला था वो सब कुछ यहाँ पे टैली हो रहा है कि नहीं, देख लो। यहाँ पे कौन छोटा है, m है ना, तो 1/m वाला केस आएगा, देखो डन। ओके, सो 1/m nx मीन्स डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल y। उन्होंने फाइंड किया 1/y आया, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया तो इट इज़ y, और y से आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो नए a एंड b मिले, a एंड b से आप एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट मिलने के बाद सीधा सॉल्यूशन, सो सीधा सॉल्यूशन में x स्क्वायर वाई रेज़ टू 4 प्लस 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू 6/3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप देख लो, और कहीं पर भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लो। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडे सेशन, एनीबडी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, सो वी कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 1। ओके, यूनिट नंबर 1 में इतनी मेथड थी। फर्स्ट हमने किया वेरिएबल सेपरेबल, देन वी गो फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, then we go for the Bernoulli's differential equation, then exact differential equation, and now in today's class we already discussed about the non-exact differential equation. Okay, so this is about the unit number 1. चलो एक बार ये देख लो, उसके बाद we stop here, है ना। आज का सेशन यही